Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss about the decision making in programming. Before that, we have discussed the sequential structure of program, in which we have noticed that a program execute in a sequence, and all the statements of the programs are executed one after the others. So as you can see in the picture that the program begins and we have a sequence of statements, then the end of the program, and all the statements execute in the sequence. None of the statement is skipped. We have practiced a few programs in the class and we have noticed that uh, the C++ compiler, after compiling the program, executes in a sequential fashion. Today, we are going to discuss about the decision making in the programming. Decision making is very significant in programming. So what is decision making? Decision making is about deciding the order of execution of statements based on certain conditions, or repeat a group of statements until certain specified conditions are met. So it means that we have different statements and we have to decide which statement or set of statement has to be executed. So for making this kind of decision that which statements to be executed and which not, it all depends on the condition that is evaluated by the program. And for the evaluation of the conditions, we have to make use of relational operators. Decision making is also has a very significant role in our daily life. You can experience it like if you have to shop something, it depends on your needs. So purchasing a grocery, filling your bike, traveling somewhere, and getting admission in a university, or there are so many other things, all depends on the decisions. Even if you have to eat something, it all depends on some kind of decision that you decide based on your mood and the need, or the nature of the environment, or the nature of the gathering where you are right now. So at every occasion of your life, you have to decide, and that decision is based on certain conditions. So now let's talk about the relational operators and its usage. Relational operators allows you to compare numeric and character values and determines whether one is greater than or less than or equals to or net equals to the others. So it means that we have at least two values and we have to make a decision whether the condition evaluates as true or false. So for this purpose, we have to make use of relational operator. But before that, we have noticed that in earlier lectures, we have gathered information from the user, perform one or more calculation, and display the results on the screen. But computers are very good at performing the calculations. They are not only restricted to the single operation, they can perform multiple operation, and those operation depends on the nature of the condition to be evaluated. So we can make use of these relational operators in if statement. So first of all, we have to make use of selection statements. Selection statement allows you to select one or more statements to execute at one time depending upon the results of the conditions that is currently evaluated. And for the condition evaluation, we have to make use of relational operators. So first of all, we test how the relational operators are evaluated in any conditions. So let's go to the code and test it.
इस चीज को टेस्टिफाई करते हैं कि अगर हम किसी रिलेशनल ऑपरेटर को किसी एक्सप्रेशन के अंदर यूज करेंगे तो वो एक्सप्रेशन किस तरीके से वैल्यूड होगी। और जब हम इस चीज को वैल्यूड कर लेंगे तो उसके बाद हम इफ कंडीशन को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर I have declared two variable x and y, and x is initialized to 0, 10, and y is initialized to 15. So these are the two declarative statements that have uh, defined two variable x and y in my program. और नीचे आप देख रहे हैं 4 डिफरेंट सी आउट स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंसोल के ऊपर मुझे रिजल्ट्स डिस्प्ले करेंगे। मैंने यहाँ पर 4 रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया है। पहले वाले में इक्वल्स टू है, तो यहाँ पर हम x की वैल्यू को y से कंपेयर कर रहे हैं। अगर मैं इसको लिखूं तो ये कुछ ऐसे होगा कि वैल्यू 10 इज मच बेटर। मैं इसको थोड़ा ऐसे लिखूं, 10 इज इक्वल्स टू 15। हम इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ेंगे, सी आउट 10 इज इक्वल्स टू 15। अब 10 इज इक्वल्स टू 15 अगर तो 10 15 के बराबर है जैसे दैट इज नॉट करेक्ट। तो 10 इज नॉट इक्वल्स टू 15, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स इवैल्यूएट हो जाएगी। इसी तरीके से अगली स्टेटमेंट में हम कहते हैं 10 is less than 15, because 10 x की वैल्यू है, 15 y की वैल्यू। x is less than y का मतलब है 10 is less than 15, और yes 10 is less than 15, तो इस केस में मेरा आंसर ट्रू आएगा। फिर x is greater than y, x की वैल्यू अगेन 10 है, तो 10 is greater than 15, तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स इवैल्यूएट होगी। और फिर हम आखिरी कंडीशन में कहते हैं कि x नॉट इक्वल्स टू y, यानी 10 is not equals to 15, तो मेरी ये वाली कंडीशन भी ट्रू वैल्यूड होगी। अब जब मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरी पहली सी आउट स्टेटमेंट मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी, दूसरी सी आउट स्टेटमेंट मुझे ट्रू रिटर्न करेगी, तीसरी सी आउट स्टेटमेंट मुझे फॉल्स रिटर्न करेगी, और आखिरी सी आउट स्टेटमेंट मुझे ट्रू रिटर्न करेगी। तो 0 1 0 1, जहाँ 0 फॉल्स को इंडिकेट कर रहा है और 1 ट्रू को इंडिकेट कर रहा है, तो मेरे इस प्रोग्राम की आउटपुट कुछ इस तरह से होगी। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं। सो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी पहली आउटपुट 0 है, फिर 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है। तो फॉल्स एंड ट्रू आर द रिजल्ट्स जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में। जो पहली स्टेटमेंट हमने डिस्कस करनी है वो एक इफ स्टेटमेंट है, और इफ स्टेटमेंट्स डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज होगी, और इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। यानी अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे गौर करें तो आप देखेंगे कि एक इफ की कंडीशन को हम एवेल्युएट करेंगे। नो व्हाट इज दिस कंडीशन? ये जो कंडीशन है ये अभी हम कुछ देर पहले देख के आए हैं, जहां पर हमने एक्स और वाई का कंपैरेटिव एनालिसिस किया। तो जहां एक्स की वैल्यू वाई के साथ कंपेयर हो रही थी, we were saying that x is equals to y, and we were saying that x is less than y. That was actually a condition. A relational expression is treated as a condition in if statement, और फिर इस if statement को immediately एक single statement या set of statements follow करेंगे। तो अगर हमारी condition true evaluate होती है तो immediately जो if के बाद statement आ रही है, ये वाली जो statement आ रही है, this statement या group of statements, ये execute हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरी ये if की condition true नहीं होती तो मेरी जो immediate statements हैं after the if statement वो execute नहीं होंगी। अब इस चीज को हम
देखिए कि ये बिल्कुल हमारी नॉर्मल लाइफ की तरह है, जैसे नीचे आप एग्जांपल में देख रहे हैं, where लिखा है इफ यू आर हंग्री, तो यू आर हंग्री इज अ क्वेश्चन, is a condition that testify you you are hungry or not. If you are hungry, if this condition evaluates true, then you'll have to eat something. Otherwise, you will do nothing. तो बिल्कुल इसी तरीके से प्रोग्राम के अंदर भी जब हम किसी स्टेटमेंट को evaluate करेंगे, तो वो इसी तरीके से एग्जीक्यूट होती जाएगी. इफ एक सिंपल इंग्लिश की एक स्टेटमेंट है जिसको हम एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स, इनको यूज करते हुए हम डिस्प्ले करेंगे. और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे याद रखने वाली वो ये है कि इफ की कंडीशन के बाद जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी दैट ओनली बिलोंग्स टू इफ. और अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को उसका पार्ट बनाना चाह रहे हैं देन यू हैव टू मेक यूज ऑफ करली ब्रेसेस टू मेक अ सेट ऑफ स्टेटमेंट. अब इस चीज को हम प्रोग्रामेटिकली कोड करके देखते हैं कि ये कैसे इवेल्युएट होंगी. ओके, इस छोटे से प्रोग्राम के ऊपर गौर करते हैं जहाँ पर मैंने एक इंटीजर वेरिएबल मार्क्स लिया है. मार्क्स की इनिशियल वैल्यू मैंने 51 असाइन की है. If marks is equals greater than or equals to 50, then a student is greeted, congratulations, you are pass. This is the very basic structure of it. मैं इस प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करता हूँ, हम इसकी आउटपुट को देखते हैं और फिर उसके बाद इसकी जो मार्क्स की वैल्यू है उसके अंदर हम चेंज करके टेस्ट करेंगे कि क्या उस वैल्यू को चेंज करने के बाद भी हमारा प्रोग्राम उसी तरीके से एग्जीक्यूट होगा जिस तरीके से पहले एग्जीक्यूट हुआ है. So think in your mind what we are doing. We are comparing the value of marks with 50, and the value of mark is 51. 51 is greater than or equals to 50. Yes, 51 is greater than. So ultimately, we will have the greeting on the screen. Let's test this code by uh, compiling the program. So you can see on the screen that there is a message, congratulations, you are pass. अब मैं प्रोग्राम में वापस जा रहा हूँ और इस प्रोग्राम के अंदर हम कंडीशन को चेंज करके टेस्ट करते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आएगा. नाउ वी हैव मेक अ चेंज और मार्क्स की वैल्यू को मैंने 49 कर दिया. अब आपके ख्याल में इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होनी चाहिए? 49 greater than or equals to 50, and obviously this condition is false. तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट पास नहीं. तो हमारी स्क्रीन पे क्या रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए? जस्ट थिंक इन योर माइंड. उतनी देर में प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ और फिर देखते हैं कि जो आपने सोचा है क्या वही आउटपुट है या कुछ उससे मुख्तलिफ है. सो इस केस में यू पीपल बेटर नो कि आपने क्या सोचा था, लेकिन इस केस में हमें स्टिल स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड एज ए पास स्टूडेंट ऑल दो कि हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स इवेल्युएट हो गई है. तो जो बात मैंने आपसे पहले कही थी अब उसकी तरफ वापस जाते हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ जो पहली स्टेटमेंट होगी that is considered as a part of if statement, or rest of the statements are not part of if condition. So इस केस में अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पार्ट बनाना चाह रहे हैं, फॉर इंस्टेंस if का, तो उस केस में वी हैव टू मेक अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट. वी हैव टू मेक यूज ऑफ करली ब्रेसेस. तो करली ब्रेसेस के इस्तेमाल से अब नो ये जो if की स्टेटमेंट है, नो this these statements are actually set of statements or a block of statement, और ये पूरा का पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या इसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो वापस चलते हैं और अपने प्रोग्राम को हम दोबारा से कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या चेंज आई है. सो दिस टाइम यू कैन सी कि देयर इज नो आउटपुट ऑन द स्क्रीन. द पॉइंट इज कि अगर आपने एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को इफ का पार्ट बनाना है तो आपको उसको एज ए ग्रुप स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा.
और अगर आपने उसको एज ए ग्रुप स्टेटमेंट नहीं लिखा और आप ये समझ रहे हैं, अपने तौर पे ये समझ रहे हैं कि जो मैंने 1, 2 जो 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं, वो इफ के साथ एग्जीक्यूट होंगी, देन अल्टीमेटली इट विल लीड यू टुवर्ड्स अ लॉजिकल एरर। सिर्फ और सिर्फ जो इमीडिएट स्टेटमेंट है, जो इफ कंडीशन के बाद आ रही है, उसका ताल्लुक इफ के साथ है। उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स होंगी, दे आर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स, उसका इफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होती हैं। तो जितनी भी स्टेटमेंट्स को आपने इफ का पार्ट बनाना है, उन स्टेटमेंट्स को आपको एक ब्लॉक के अंदर लिखना पड़ेगा और फिर उस ब्लॉक के अगेंस्ट वो ब्लॉक उस वक्त में चलेगा जब आपकी कंडीशन ट्रू एवेलुएट हो जाएगी। एक और चीज जो आपने यहाँ पे नोटिस की है वो ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ ट्रू केसेस को डील कर रहे हैं, फॉल्स केसेस को हम डील नहीं कर रहे। अगर आपके प्रोग्राम के अंदर आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू एवेलुएट नहीं होती, तो फिर उस केस में क्या होगा? सो अभी देखें कि हमने यूजर को रिस्पॉन्ड नहीं किया जब हमारी कंडीशन फॉल्स थी। तो इफ स्टिल वी वांट टू रिस्पॉन्ड टू द यूजर इन केस कि अगर आपकी कंडीशन फॉल्स एवेलुएट हो जाती है और उस केस में हम यूजर को इंटीमेट करना चाह रहे हैं कि उस कि क्या कोई मैसेज उसको देना चाह रहे हैं, तो उस केस में वी हैव टू मेक यूज ऑफ एल्स। तो एल्स के केस में वी कैन राइट सम मैसेज। So this is the message that will be printed in this case when user is not declared as a pass student. तो मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से अब कंपाइल करता हूँ और हम देखते हैं कि हमारा इस केस में now you can see that the else part is executed. So if and else, if your condition is true, then the statement immediately following the if are executed, and if your condition is false, then the statement immediately following the else will execute. और वो जो रूल हमने अभी if के साथ डिस्कस किया है, एग्जैक्टली वही रूल हमारा जो है वो else के साथ लगेगा। जिस तरह एक इमीडिएट स्टेटमेंट जो इफ कंडीशन के बाद आ रही है वो इफ का पार्ट है, और अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को आपने इफ कंडीशन के साथ एसोसिएट करना है तो फिर उसको एक ब्लॉक में लिखना पड़ता है। इन द सेम वे अगर आप एल्स के केस में भी एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहेंगे तो फिर आपको एल्स की वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स जो हैं उनको ग्रुप के अंदर लिखना पड़ेगा, इकट्ठा करके क्लब करके लिखना पड़ेगा। तो फिर वही काम होगा, या एक पहला सेट ऑफ स्टेटमेंट चलेगा या आपका दूसरा सेट ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, एक और एग्जांपल के साथ अब हम इफ और एल्स को समझने की कोशिश करें। So here we write a program that determines whether a number is odd or even. Think about this program और कोशिश करें इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए इस वीडियो को पॉज करें और फिर देखें, अपने ज़हन पे जोर दें और ये देखें कि आपका जो प्रोग्राम है वो किस तरह का होगा। तो हम इस केस में यूज़र से इनपुट लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है वो हमारा जो नंबर है वो इवन है कि ऑड है। सो एक मैं एन इनपुट के तौर पे लेता हूँ और हम यूज़र से कहते हैं कि एक एंटर करे वो नंबर और उस नंबर को हम सीन करवाते हैं। जब ये नंबर इनपुट होगा तो मुझे अब इस नंबर को टेस्ट करना है। तो वी नो कि ऑल इवन नंबर्स आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। इट मींस कि अगर हम उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में कोई चीज़ नहीं बचेगी, और अगर रिमाइंडर में कुछ बचता है तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन नहीं है।
रिमाइंडर लेने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ मॉड्यूलस ऑपरेटर। सो हमने नंबर का 2 के साथ मोड लेना है। जब हम नंबर का 2 के साथ मोड लेते हैं और फिर मोड हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो इसका मतलब है कि अगर रिमाइंडर 0 है तो नंबर हमारा इवन है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो नंबर हमारा ऑड है। तो इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल का साइन हम यूज करेंगे और इसको हम कंपेयर करेंगे 0 के साथ। तो हम अब सी आउट कर देंगे नंबर इज इवन, और इवन वी कैन display the exact number. Number n is even. इस केस में this is a string, n will display its value is even, ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा। और इसके else पार्ट में हम डिस्प्ले करते हैं कि नंबर जो है वो ऑड है, तो इसकी जगह में ऑड लिख देता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। तो प्रोग्राम चला है और प्रोग्राम हमसे एक इनपुट रिक्वायर करता है और मैं इनपुट देता हूँ 31। तो 31 इज ऑड, नंबर 31 इज ऑड। और इसी तरीके से अगर हम इस प्रोग्राम को दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे तो अगेन आप देखेंगे कि अब इस केस में मैं एक इवन नंबर एंटर करता हूँ 12, द नंबर इज इवन। सो यहाँ पर हमने इफ की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए किसी नंबर की इवन या ऑड होने को डिटरमिन किया है। तो अगेन अब आपने गौर किया है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, तो इफ और एल्स के अंदर की जो स्टेटमेंट्स होंगी उनके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन होगी, यानी उनमें से कोई एक ही स्टेटमेंट या एक ही सेट ऑफ स्टेटमेंट एक वक्त में एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो एग्जीक्यूट हो गया है तो दूसरा किसी सूरत में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मतलब तुरंत ये है कि नंबर या तो इवन है या ऑड है। और यहाँ पर हमने जब पहला नंबर एंटर किया था तो वो एक ऑड नंबर था, लिहाजा मेरी एल्स वाली स्टेटमेंट चली। और सेकंड टाइम मैंने जो नंबर एंटर किया दैट वाज एन इवन नंबर, लिहाजा मेरी पहले वाली स्टेटमेंट चली और दूसरी स्टेटमेंट नहीं चली। तो इन दोनों में से एक वक्त में एक ही स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है। इसी तरीके से हम इस इफ और एल्स के स्ट्रक्चर को बहुत सारे डिफरेंट जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोग अपने ईमेल अकाउंट्स को यूज करते हैं, फेसबुक अकाउंट्स को यूज करते हैं, ट्विटर अकाउंट को यूज करते हैं। जब कभी वहां पर आप लॉगिन करते हैं तो लॉगिन की भी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स ठीक है या आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स गलत हैं। अगर आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स ठीक होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी इफ कंडीशन ट्रू वैल्यूएट हुई तो आपको वो लॉग्ड पेज में ले जाएगा, और अगर आपकी लॉगिन कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर वो आपको रीडायरेक्ट कर देगा वापस कि जी आपने जो यूजर नेम एंटर किया है वो करेक्ट नहीं है, या आप एक रजिस्टर्ड यूजर नहीं है। तो आज के दिन में हमने जो चीज सीखी है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग प्रोग्रामिंग के अंदर आपको अलाउ करता है कि आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान किसी सर्टेन स्टेट के ऊपर ये डिसाइड कर सकें कि आपने कौन सी स्टेटमेंट या कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना है और किसको नहीं करना। तो अगले आने वाले लेक्चर के अंदर हम इफ की फर्दर स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। एंड आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा, और आई वुड रिकमेंड कि आप बुक रीडिंग करें और डिफरेंट प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करें ताकि आप इस इफ के स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर listening and understanding the concepts.